Good morning, students. Yesterday we have started Unit 3 of Macroeconomics, that is determination of income and employment. And yesterday I have told you about aggregate demand and its components. The meaning of aggregate demand is again that it refers to total demand for all final goods and services planned to be bought in the economy during a given period. कि एक given period में सभी के द्वारा किए जाने वाला एक्सपेंडिचर एक जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ही एग्रीगेट डिमांड है, और जितने ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जितना एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. So components of aggregate demand are same the components of expenditure method which we have studied in national income. So they are four: household consumption demand, private investment demand, government demand for goods and services, and net export demand, X minus M, exports minus imports. AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. तो ये फार्मूला हमने एक्सपेंडिचर मेथड का पढ़ा था नेशनल इनकम में, एंड द सेम आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो फर्स्ट इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड. इट इज़ डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय. जो भी हाउस होल्ड डिमांड करते हैं, डिज़ायर करते हैं, उसको ख़रीदना चाहते हैं और उसकी एबिलिटी है उनके पास, दैट इज़ हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड. Alternatively, it refers to planned demand. Planned के लिए जो word use किया है that is exempt. It means planned. And other term is ex post. It means realized. So two things are there. Two type of terms are used here. One is planned and other is realized. One is exempt and other is ex post. So it is planned demand, planned consumption expenditure to be incurred by all households on purchase of all the goods and services. For example, demand for furniture, household goods, eatables, wearables, radio, TV set, educational service, medical service. So many consumption items are there which households are ready to buy. So these all include household consumption demand. Second is private investment demand, that is denoted by I. This refers to planned expenditure, exempt expenditure on creation of new capital assets like machines, buildings and raw materials for by private entrepreneurs. कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो भी किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट पर खर्चा है, चाहे वो मशीन्स पर करे, बिल्डिंग्स पर करे या रॉ मटेरियल्स पर करे, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड. एंड इन्वेस्टमेंट इन केन्जियन सेंस डज नॉट इम्प्लाई परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज़. जो शेयर और सिक्योरिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड हेयर, बट इट मीन्स एडिशन टू, नया एडिशन करने के लिए इसमें इस इन्वेस्टमेंट डिमांड में कैपिटल स्टॉक में जो नया ऐड होगा दैट विल बी इंक्लूडेड. कि नई कैपिटल एसेट्स को खरीदना, जस्ट लाइक प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एंड स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड. टू न्यू टर्म्स you will study in this chapter, autonomous and induced. Autonomous means self-regulated, independent, which is not affected by any factor, and induced, which is affected by the related factors, that is induced. So next is government demand for goods and services. It refers to government planned, सबके साथ planned word लगाया है, exempt word लगाया है, planned expenditure on purchase of consumer and capital goods to fulfill common needs of the
सोसाइटी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो वो पब्लिक के ऊपर खर्च करती है, सोसाइटी की कॉमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए खर्च करती है। द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। और ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ये किस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिटरमाइन होता है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो पब्लिक के ऊपर कम एक्सपेंडिचर करती है, और अगर डिफ्लेशन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट किस तरह की आइटम्स पर खर्च करती है, लाइक मेकिंग रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वाटर बॉडीज़, वाटर वर्क्स, railway transport, infrastructure like roads, bridges, airport. These all are for collective use of society and it is included in the expenditure of government. And investment expenditure is assumed to be constant during short period. और ये जो government का expenditure है ये short period में constant assume किया जाता है. So investment curve is a horizontal line parallel to x. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ये जो डायग्राम में शो किया जाता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी कांस्टेंट इन शॉर्ट पीरियड. नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. इट बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ एडी, नेट एक्सपोर्ट्स इज एडेड टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी. टू सम अप, जो नेट एक्सपोर्ट है आई हैव टोल्ड यू दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. So to sum up aggregate demand is the sum of above mentioned 4 types of demand like CIG plus X minus M. Aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. So these 4 components collectively make aggregate demand. And aggregate demand is comprises 2 types of expenditure, C plus I, consumption expenditure and investment expenditure. Although there are 4 components, but major share is constructed by 2 type of expenditure. C और I ये दो मिलकर ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट हैं, ये ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, इसलिए एडी के मेनली 2 कंपोनेंट ही कंसिडर किए जाते हैं, C प्लस आई. G और X माइनस M को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ये इतना बड़ा पार्ट कंस्ट्रक्ट नहीं करते जितना C और I करते हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे जो बड़ा शेयर है वो C और I का है, इसलिए बाकी उन 2 कंपोनेंट्स को इग्नोर करके C और I को ही लिया जाता है. तो AD इज इक्वल टू C प्लस I. एंड सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट दिस, that AD curve has a positive slope, which means when income increases AD also increases. AD curve does not originate at point 0, which shows that even at 0 level of income some minimum level of consumption is there. So I will show you the diagram. That is investment and this is consumption. This is the line of consumption C, that is autonomous consumption plus induced consumption, and one line will be drawn here, that is C plus I, जिसमें C और I का समेशन होगा. ये हमारा कंजप्शन की लाइन है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और जो C प्लस I है ये हमारा इन दोनों का समेशन है, और ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व. जिसमें C प्लस I ये दोनों कंपोनेंट्स लिए गए हैं. तो AD के मेनली 2 कंपोनेंट्स कंसिडर किए गए हैं, C प्लस I. अब ये जो हमारा C है कंजप्शन की लाइन है, ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, उसके ऊपर से क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि कभी भी 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन हमारा 0 नहीं होता. ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजप्शन भी 0 हो जाएगा. वी वॉन्ट सम मिनिमम कंजप्शन फॉर आवर सर्वाइवल. तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ खाना पीना, कुछ नेसेसरी खर्च करना ज़रूरी होता है, इसलिए कभी भी 0 लेवल पर हमारा कंजप्शन 0 नहीं होता, और ये कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, उससे कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है.
and investment curve is a straight line parallel to x axis, because according to Keynes a level of investment remains constant at all levels of income, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और ये इनकम के हर लेवल पर कांस्टेंट रहता है, सो इट इज़ शोन बाय अ पैरेलल to x axis line. So that's all for today. Thank you.